Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagang. Welcome to all the student in classroom training video lecture. I hope you would be fine and you would have been prepared all the lecture whether they were delivered by me or Sir Mumtaz. Dear student, as you know that you have only one option to study and this option is only online classes. You cannot avail any other option. So you have already known about it that the grammar portion is being taught by me and the text portion is being taught by Sir Mumtaz. Both the portions are equally important for English subject which is being taught in your level at second year or first year level. So dear student, in previous lecture I was talking about a different topic, but in this lecture here I am going to narrate or elaborate you a very important topic which is looked very simple, but it is very important. English doubts. I have also seen many times that the student misunderstand these things, that how can they use, what are the real motive by using these words. So आज मैं इसके अंदर ये डाउट आपका क्लियर करूँगा कि कहाँ पे और किस जगह पे आपने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारे all these words are giving the same meaning. Keep and put, voice and sound, ये हमने ग्रुप बना दिए हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपको ये पेयर नज़र आ रहे हैं ये सेम मीनिंग देते हैं. ये सारे के सारे पेयर सेम आपस के एक दूसरे के साथ सेम मीनिंग देते हैं. बट हेयर I am going to clear this doubt that how can you locate that what type of word you are going to use in what type of situation. So dear student, it is very important for you, because if you want to move further in your upcoming days, in your future, if you want to make secure your future, then you will have to learn English very well. There is no other option for you. If you want to make struggle, if you want to make progress in your future life, then you must have to follow the English language. If you know very well English language, you will be satisfied in every department. As you know that this is the era of English language. Whether you are going in any department, whether you are going to in medical field, etc., कोई भी आप फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ पार्ट एंड पार्सल. यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस लैंग्वेज. सो इट विल बी बेटर फॉर यू दैट यू must have some knowledge about the English language and you must be able to speak fluently in English language. So keep versus put. Keep का मतलब क्या है और put का मतलब क्या है, दोनों का मतलब रखना है. अब keep की बात करते हैं तो रखना है, पुट की बात करें वो भी रखना है. अब ये बात क्या है, देखिए कीप का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज़ आप फिज़िकली भी और नॉन फिज़िकली भी रखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये चेयर उठा के वहाँ रख दो, कीप द चेयर देयर, तो फिज़िकली हो गया. जब आप ये कहते हैं कि मेरा भरोसा कायम रखना या अपने लफ्ज़ों की लाज रखना या मैं अपने लफ्ज़ों की लाज रखता हूँ, आई कीप माई वर्ड्स, यहाँ पे नॉन फिज़िकली है. चेयर को उठा के वहाँ रखना क्या है, ये फिज़िकली है. बट जब आप कहते हो कि मैं अपने लफ्ज़ों की लाज रखता हूँ, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट नॉन फिज़िकली बात की जा रही है. और दोनों तरह से हमने इसको पढ़ा, यानी कीप को यू कैन यूज़ द वर्ड द टर्म कीप एज वेल. यहाँ पे आप फिजिकली भी रख सकते हैं एज वेल एज नॉन फिजिकली, यानी यू कैन यूटिलाइज दिस टर्म इन बोथ वे, फिजिकली एंड नॉन फिजिकली. बट पुट is only associated with physically. When you are going to put something physically, when you are going to touch something and when you are going to put something from one place to another place physically, तो वो क्या कहलाता है, पुट कहलाता है. जब आपको जिस्मानी तौर पे when you are going to do some work by physically, कोई चीज़ उठा के आप इधर से उधर रख रहे हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, पुट कहोगे. ये फिजिकली भी इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ फिजिकली होता है और ये नॉन फिजिकली भी होता है. क्लियर हो गया. वॉइस एंड साउंड, देखिए अक्सर ये होता है वॉइस भी होती है साउंड भी होती है, दोनों का मतलब आवाज़ है. यानी देखिए ना यहाँ पे दोनों का मतलब रखना था,
यहाँ पे दोनों का मतलब आवाज़ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करें, ये वॉइस कहाँ पे है और साउंड कहाँ पे है। देखिए जो वॉइस है ना, वॉइस इज रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जानदार हैं, जब उनके मुंह से कोई आवाज़ आप सुनते हैं, आती है, तो वो क्या कहलाती है, आवाज़, वॉइस कहलाती है। और जब कोई नॉन लिविंग बीइंग है, मोबाइल की हमेशा साउंड होती है, वॉइस नहीं होती, ये बात याद रखें। मोबाइल की हमेशा साउंड होती है, वॉइस नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग है। जब लिविंग बीइंग से आवाज़ आती है, जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं ना कि कॉल पे कि आपकी जो है ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज़, कभी ये कहा है कि आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही, वाई। लेकिन जब कहते हैं कि यार मोबाइल का साउंड ऊंचा करो, हम वॉइस क्या देते हैं, तो वो लाइलवी में कहते हैं, तो मोबाइल का साउंड होता है। तो साउंड जो है वो वाली आवाज़ होती है जो किसी नॉन लिविंग जैसे डिवाइसेस हैं, और जब आप किसी लिविंग बीइंग के मुंह से कोई आवाज़ है, तो वो क्या कहलाती है, वॉइस। हियर भी सुनना, लिसन भी सुनना। अब ज़रा गौर करें ना, हियर मेरे कान है, मैं सुनता हूँ, ठीक है ना। जब आपके कान है तो आप कुछ भी सुन रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे। व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल टू लिसन समथिंग, टू हियर समथिंग, कुछ सुनने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो लिसन होता है। अक्सर आपको टीचर कहते हैं लिसन केयरफुली, कभी वो ये कहते हैं कि हेयर केयरफुली, क्यों नहीं कहते, क्योंकि हेयर का मतलब जस्ट सुनना है, मेरे कान है तो मैं कोई ना कोई आवाज़ सुनूंगा। और लिसन का मतलब होता है कि मैं ध्यान के साथ सुन रहा हूँ, यानी यू आर गोइंग टू हियर समथिंग बाय केयरफुली। व्हेन यू आर गोइंग टू हियर समथिंग केयरफुली, इट मीन्स दैट यू आर लिसनिंग। तो आप फिर क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो ये फ़र्क है। हेयर जस्ट सुनना और लिसन क्या होता है, ध्यान के साथ सुनना। नेक्स्ट है कंप्लेन और कंप्लेंट। ये बड़ा कंफ्यूज है, करता है अक्सर स्टूडेंट को। कंप्लेंट है नाउन और ये है वर्ब। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। दोनों में फ़र्क है, ये वर्ब है और वो नाउन है, यानी वहाँ पे आप कंप्लेंट के अंदर शिकायत का जिक्र कर रहे हैं, यानी आप शिकायत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कंप्लेन के अंदर आप जस्ट क्या कर रहे हैं, आप शिकायत करने के बारे में बात कर रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये वर्ब है एंड ये क्या है, नाउन है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब देखिए ये तीनों लफ्ज़ हैं, तीनों का मतलब देखना है। सी का मतलब देखना, वाच का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना। अब सी कहाँ पे देखना है, अब ज़रा गौर करें। सी हम कहते हैं कि मेरी आंखें मैं देखता हूँ, जैसे हियर था मेरे कान है मैं सुनता हूँ, सी मेरी आंखें हैं मैं देखता हूँ। अब मेरे सामने इस रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं तो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने कोई कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट नहीं की, एंड आई एम एफर्टलेस टू सी समथिंग, ठीक है। बट व्हेन आई मेक एफर्ट्स टू सी समथिंग, तो वो फिर क्या कहलाता है, वो लुक कहलाता है। यानी जब आप कोशिश करके, जब आपको टीचर कहता है लुक एट द बोर्ड, हैव यू हर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ द टीचर दैट सी एट द बोर्ड, कभी सुना है आपने, नहीं सुना। यू हैव लिसन्ड, you have heard that the teacher always says look at the board। टीचर हमेशा क्या कहता है, look at the board, बोर्ड के ऊपर देखो। अब ये भी देखना वो भी देखना, मेरी आंखें हैं मैं देखता हूँ, ये सिंपल है। लेकिन जब मैं स्ट्रगल करके देखता हूँ, when I am looking something with struggle, it means वो फिर किस में शामिल है, लुक के अंदर शामिल है। फिर है वॉच, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना है। अच्छा, मूवी के लिए वॉच होता है, क्रिकेट मैच के लिए वॉच होता है, वाई, वो भी तो आप देख नहीं रहे, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप कोई चीज़ हरकत करती हुई देखेंगे, एंड व्हेन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड यू आर लुकिंग दैट थिंग, इट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग, यू आर वॉचिंग।
वो भी देखना है। अगर आप किसी हरकत करती हुई चीज़ को देख रहे हैं तो उस टाइम आप करते क्या हो, वाच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, यकीनन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। शुक्रिया।